کیا عمران خان ہے جس کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا ہماری آرمی ہے؟ فاؤنڈر ہیں اوبیسلی عمران خان صاحب، ان کا نام بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ ایسے سوالوں کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، اتنا وہ لیسٹ کمپلیکیٹڈ اس ایشو کو رکھ سکتی ہیں، جوابوں کو رکھ سکتی ہیں، وہ ان کو رکھیں۔ قائد اعظم، ان کی آئیڈیالوجی یہاں پر ہر دن اساسینیٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہاشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں جی 8 فروری 2024 میں الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ان جنرل بھی جو الیکشنز کا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں وہ بہت کام ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، لیکن پاکستان میں سینز ہی الگ ہو جاتے ہیں، ماحول جو ہے وہ ایک الگ طرح کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی جس طرح کاغذات نامزدگی جب جمع ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے بیسیکلی ان کے ساتھ جو حالات چلے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹ چھین لیے جاتے تھے جاتے جاتے، یا ان کو خود ہی بندے کو ہی گرفتار کر کے لے جاتے تھے۔ ابھی پہلا سٹیپ تو پورا ہو گیا ہے کہ لیٹ سنڈے تک کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا تھا الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کو جمع کروانے کا سیاسی جماعتوں کی ریکویسٹ پہ، وہ پورا ہو گیا۔ تو دوسرا جو سٹیپ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ سکون کا نہیں رہنے والا۔ اس میں جو آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن اس کی اسکروٹنی کرتی ہے، اس کو چیک کرتی ہے کہ کس کس بندے کو جو ہے نا میں نے اس میں رکھنا ہے، کس کو میں فلٹر آؤٹ کر دوں کہ یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کافی امیدوار ہونے والے ہیں۔ اب 1 جنوری سے لے کے 3 جنوری 2024 تک کا وقت ان امیدواروں کے پاس ہوگا جن کے اوپر آبجیکشن لگائے گی الیکشن کمیشن کہ وہ اس بارے میں کچھ کر سکیں، جواب دے سکیں، یا جو بھی انہوں نے آبجیکٹ کیا ہے اس چیز کو کریکٹ کر سکیں۔ لیکن وہی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہاں پر کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز کے اوپر اگر مسئلے آئیں نا تو آپ انہیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ چلو یہ غلطی نہیں کرنی ہے، یہ ڈاکومنٹ مس نہیں کرنا تاکہ ہم پہ کوئی آبجیکشن نہ آ جائے۔ بٹ سنس یہاں پر جو چیزیں چلتی ہیں وہ پرسنل گین کے لیے یا آلریڈی پلانڈ آؤٹ جو آگے آپ کا لایا عمل ہوتا ہے نا اس کو عمل میں لانے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، تو امیدوار اس طرح سے ریڈی نہیں ہو پاتے وقت سے پہلے اس کو لے کے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اوبویسلی۔ اور ابھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیے ہیں، اور اس کے رزلٹ میں ان کا انتخابی نشان بلہ وہ ان سے لے لیا، ان کا جو چیئرمین ہے وہ گیا گوہر علی خان، ابھی بغیر چیئرمین کے پی ٹی آئی چل رہی ہے۔ لیکن جو سیاسی جماعتوں کی لسٹ جاری کی ہے نا الیکشن کمیشن نے، اس میں 175 ٹوٹل پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں فور الیکشنز، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو آگے باکس ہے ادھر بانی کا جو سیکشن ہے نا وہ خالی ہے۔ عمران خان کا نام انہوں نے سرے سے ہٹا دیا اس لسٹ کے اندر سے۔ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے ایون پرویز خٹک کا نام وہاں پر جو ہے نا بانی کے طور پہ لکھا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا نام ہے ہی نہیں، چیئرمین نہیں ہے اس ٹائم اس پارٹی کا کوئی بھی، تو وہ ایک اوبویسلی ایک پوزیشن ابھی خالی ہے۔ لیکن بانی کے طور پہ جو فاؤنڈر ہے ایک پارٹی کا وہ اہل ہے نہیں اہل ہے، بے شک کسی ایکٹنگ پوزیشن پر وہ ہے یا نہیں، تو اس کا وہاں پر نام جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ویسے تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دیا ہوا ہے 5 سال کے لیے، لیکن یہ سین کچھ اس طریقے سے ہی ہے نا کہ جب ضیاء الحق کا ٹائم تھا اور اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ان کا بڑا جو ہے مسئلہ چل رہا تھا اس سارے ٹائم کے اوپر، اور جب الیکشنز کی لسٹ آتی ہے اس کے اندر جو تلوار کا نشان تھا تب پی 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 کا وہ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ وہ آپ کو بیفور ہینڈ کوئی ہیڈز اپ ہی دے دیں کہ جی یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اچانک سے آپ کا انتخابی نشان غائب کر دیا جاتا ہے۔ تب پیپلز پارٹی کو انہوں نے تیر کے نشان کو اڈاپٹ کیا تھا، اور تب سے وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ بٹ وہی اس وقت ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی چیز ہوئی ہے کہ جب لسٹ آئی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما نہیں فاؤنڈر ہیں اوبویسلی عمران خان صاحب، ان کا نام بالکل غائب کر دیا گیا ہے، موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کی اوبویسلی گراؤنڈز یہی ہیں کہ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جتنے بھی الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات چل رہے ہیں، نون لیگ پولیٹیکل لحاظ سے کافی بہتر پچ کے اوپر ہے، اور عمران خان اس ٹائم بے شک اب پولیٹیکل لحاظ سے یا جوڈیشل لحاظ سے بہت زیادہ کارنرڈ ہے، لیکن عوام میں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ سٹل بہت زیادہ ہے کہ ابھی آپ گراؤنڈ میں جا کے اگر الیکشنز کروائیں گے تو عمران خان کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ نظر آئیں گے۔ دیٹ از پریٹی مچ دا ریزن جس کی وجہ سے الیکشنز میں الیکٹڈ کے لفظ کی جگہ سلیکٹڈ کے لفظ کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہی کام 2018 میں بھی ہوا تھا کہ
इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा लग रही थी। खैर जहाँ तक कॉर्नर करने की बात है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये है कि ये अंडरस्टैंड भी करने की ज़रूरत है कि कॉर्नर एक्चुअली में हुआ कौन है, घेरा किसके ऊपर तंग हो रहा है इस वक्त एट द मोमेंट। क्या इमरान खान है जिसके ऊपर घेरा तंग हो रहा है, या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी आर्मी है। अभी आप अगर देखें कि जो बलोच प्रोटेस्ट चल रहा है इस्लामाबाद में, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जुडिशल मर्डर के नाम से जो इस वक्त केस ओपन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ज़ियाउल हक आएंगे सामने, और इन इस तरह की जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आर्मी का नाम जो है वो यूज़ हो रहा है। और आर्मी इस वक्त, हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो अमेरिका का दौरा भी उनका ख़त्म हुआ है, उसमें जो भी उनके प्रोमिसेस हुए हैं इलेक्शन फेयर करवाने के, या जो भी यूएस से की हमेशा से पॉलिसी तो रहती है कि हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के ख़िलाफ़ हैं। ये बात एक अलग है, डिबेटेबल है कि उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होती है। बट इस चीज़ को अगर देखें कि घेरे तंग की सिचुएशन में इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, शायद उनके ऊपर इवेंचुअली ये वक्त आए कि वो इस घेरे से थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस लेवल की आपने एक कहते हैं ना तंगी एक पार्टी को दे सकते हैं वो उनको दी गई है। चाहे वो उनकी पॉपुलैरिटी कम करने की कोशिश हो, या उनके वोटर को डिट्रैक्ट करने की डिट्रैक्ट करने की कोशिश हो, उस सारी चीज़ में अभी तक सो फार इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी इंटैक्ट है, उनका जो वोटर बैंक है वो भी इंटैक्ट है, पॉलिटिकल लिहाज से उनकी पिच को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया है। साथ साथ हमारी जो आर्मी है उनके ऊपर केसेस जो अभी आप खोलेंगे, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो या फिर जो बलोच प्रोटेस्ट चल रहा है उसका हो, उन सारी चीज़ों में एक्सपोज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो रही हैं, उनके उनके ऊपर मामला जा रहे हैं ना। ये दीज आर द फैक्ट्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ। ये कोई मेरे अपने बनाए हुए एनालिसिस नहीं है। खैर जिस तरीके का वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक देख लिया है, उसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी जिस तरीके से सफ़र करवाई जा रही थी, उस सारी सिचुएशन में तो अब यही है कि शायद रिटेलिएशन आ रही है थोड़ी सी, थोड़ी जो दूसरी आपके ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राइवल्स हैं, उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर हिट किया जाए। शेर अफजल मरवत जिस तरीके से डॉक्टर मारंग बलोच हैं जो इस टाइम प्रोटेस्ट को बेसिकली लीड कर रही हैं इस टाइम इस्लामाबाद में, उनसे भी जाके मिले हैं। तो पीटीआई इस टाइम बलोच में जाके अपनी सिंपथीज़ कलेक्ट करे, और ये सारा प्रोटेस्ट इस टाइम जिस तरह से ओबियसली हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की गलती शो करता है ना, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उस हमारे सूबे के अंदर, और जो भी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं उधर, वो एक बलूचिस्तान एक बिल्कुल स्ट्रेट सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अभी इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि उनकी वीक पिच इस लिहाज से सबसे ज़्यादा है कि जितना वो एक्सपोज होंगे, जितना ज़्यादा उनकी जो अथॉरिटी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पाकिस्तान के जितने भी मामलात के ऊपर आती है, वो जितना ज़्यादा उसके बारे में बात की जाएगी उतनी ही ये उनका वीक पॉइंट बनेगा। अभी उनकी आप इस चीज़ का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो भी वज़ीर आज़म बने 2024 में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बिलावल, व्हाट्सएवर, उस बंदे को आप उस तरीके से डील अब नहीं कर सकते जिस तरह आपने पिछले जितने वज़ीर आज़म डील किए हैं। उनका टेन्योर मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव टू लेट देम कंप्लीट। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव होगा। खैर जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, आई एम श्योर वो खुद भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखती है कि वेदर दे लाइक इट और नॉट, अब जो वज़ीर आज़म आना है 2024 के इलेक्शंस के बाद, उसको यू विल हैव टू गिव देम सर्टन सिविल राइट्स। उनके पहले वाले मामलात अब वो नहीं किए जा सकते, इसीलिए शायद उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है इन इलेक्शंस की जो हालात देख के, यही लगता है कि जिस तरह अप फ्रंट जाके जी कागजात छीन लिए जाए किसी भी कागजात नामजदगी जमा करवाते उम्मीदवार के, तो ये एक बहुत मेरा ख्याल है ब्लंट मूव है। ये एक डेस्परेशन शो करती है एक इंस्टीट्यूशन की। तो उनसे यही नज़र आता है कि वो इन इलेक्शंस में ये चीज़ मेक श्योर करना चाह रहे हैं एटलीस्ट कि एक अपनी थोड़ी सी सेम पेज वाला, वही जो इमरान खान साहब बाजवा के साथ सेम पेज पे रहे हैं, तो उसी की तरह का एक माइंड सेट वो इस दफ़ा भी इलेक्शंस में लाना चाह रहे हैं, जो खुद से अपने तौर ही सेम पेज पे रहना पसंद करें उनके साथ। खैर जहाँ तक अमन की सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, वो हमेशा ही किसी एक कोने में मसाइल चल रहे होते हैं। जिस तरह हमारा बलूचिस्तान का सूबा है, और अभी इस टाइम वो बलोच इस्लामाबाद आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए,
उस सारे प्रोटेस्ट में 200 लोग गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस को ऑर्डर्स आए कि इनको छोड़ दिया जाए, फिर उन्होंने रिलीज़ कर दिए, लेकिन स्टिल बहुत मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं उन लोगों को। डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं बेसिकली इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, और गरीदा फारूकी जर्नलिस्ट वो उधर गई हैं। उन्होंने जाके डॉक्टर महारंग बलोच से सवाल किया कि क्या आप BLA बलोच लिबरेशन आर्मी को कंडेम करती हैं, जिसका एक तो सवाल करने वाला बंदा, फिर वो जवाब जो डॉक्टर महारंग बलोच ने दिया एक डिटेल्ड जवाब था उनका। तो बेसिकली एक सियासी सवाल किया गया, एक मिसिंग पर्सन सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट से मुतालबे चल रहे हैं बेसिक राइट्स के लिए, और उस टाइम सियासी सवालात की तो जगह बनती नहीं है। गरीदा फारूकी बहुत ज़्यादा उनको तनकीद की जा रही है उनके ऊपर, और वो वजह है, सही है, इसमें कोई इस तरह का सवाल करने की वो सिचुएशन नहीं थी। मेरे अकॉर्डिंग तो बात यह है कि एक सवाल करने वाला और दूसरा जवाब देने वाला, आप इसको अगर सुने इस वीडियो को जाके तो आप देखेंगे कि उनको डॉक्टर महारंग बलोच को उसका वो जवाब भी नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है। इस तरह के जर्नलिस्ट ऑब्वियसली हर तरह का इंसान मौजूद है, और जर्नलिज्म में बहुत सारे ऐसे लोग ऑब्वियसली वो आपका हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे निकालने की कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर पे बलोच इशू है जब, जो इस तरह से हर वक्त एक्सेस में नहीं रहता है, और अब वो आपके फेडरल में अगर आप आ गए हैं तो इस तरह के महारंग बलोच से और भी फर्दर क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जो मेरा ख्याल है। तो उनको उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि वो इस टाइम अपने एक वो कहते हैं ना कि पहला स्टेप लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये पहले स्टेप के ऊपर रहें कि जो गवर्नमेंट से उनकी डिमांड्स हैं, और इस तरह के सवालों को एक तो जर्नलिस्ट की भी ये ड्यूटी बनती है कि सियासी मत बनाएं, इस मसले को कॉम्प्लिकेट मत करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े टफ क्वेश्चंस हैं जिसका गवर्नमेंट को भी जवाब देने की ज़रूरत है। तो और यही बात कि डॉक्टर महारंग बलोच की जहाँ तक बात है, उनको ऐसे सवालों के लिए रेडी रहना चाहिए, और जितना वो लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड इस इशू को रख सकती हैं, इन जवाबों को रख सकती हैं, वो उनको रखें, ये बात है। अभी जहाँ तक हमारे मकबूजा कश्मीर की बात है, वो एक बहुत ही टफ टॉपिक है। ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक ही बड़े संजीदा और बड़े सैड हैं, लेकिन हमास के बारे में इंडियन आर्मी से सवाल किया जा रहा था अभी रिसेंटली कि क्या अगर हमास की तरह पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया तो क्या आप रेडी हैं हमें डिफेंड करने के लिए। और उनकी आर्मी जवाब दे रही थी कि जी इस दफ़ा भी पाकिस्तान मुंह की खाएगा। ये भी मुझे समझ नहीं आया कि लास्ट टाइम कब ये ग्राउंड में, फाइट के ग्राउंड्स में, कॉन्फ्लिक्ट आर्मी ग्राउंड्स में, आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ाई में कब इंडिया जीता था रिसेंटली। पहले तो खैर उसका तो अलग ही चीज़ है, लेकिन अभिनंदन वाली बात जो हो रही है वो तो स्टिल अभिनंदन को हीरो बना के फिरते हैं। इसमें भी पाकिस्तान की अपनी नाअहली है कि दूसरे दिन उसको आप जो है ना बिल्कुल सेट वेट करके जो है बॉर्डर क्रॉस करवा दें। बहरहाल अभी उनकी इसी चीज़ से मैंने एक बात कही थी कि उनकी ये बात उन्होंने कही है, उसके बाद इनकी एक टाइम लाइन पाकिस्तान ने तो किसी ना सियासी ना ही मुआशी लिहाज से, ना सियासी लिहाज से, ना किसी भी लिहाज से कोई टाइम लाइन सेट की हुई है। इंडिया ने माशाल्लाह काफ़ी टाइम लाइन सेट की हुई है अपने लिए, जिसमें कश्मीर है। कश्मीर का उन्होंने इसी तरह 370 आर्टिकल रिवॉक किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आईनी करार दे दिया। अब वहाँ पर पहले इंडियन सोल्जर्स को जो है ना मारा गया, वो एक बड़ा इशू बना कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं कश्मीर के अंदर। लोगों ने कश्मीर के अंदर से जो भी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने उनके अकॉर्डिंग मिलिटेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि उन्होंने आकर भारतीय फौजियों को मार दिया। ये एक सेम स्टोरी लगती है मिडिल ईस्ट वाली, और वही चीज़ फिर हुई कि 3 जो है ना कश्मीरियों को टॉर्चर करके मारा गया। और उनकी जब फैमिलीज़ के पास उनकी डेड बॉडीज़ पहुंची हैं तो उन्होंने कहा है कि उनकी बहुत बुरी हालत है, दे वर टॉर्चर्ड टू डेथ। ये हालात इस वक्त वहाँ पर हुए हैं रिसेंटली कश्मीर में। कुछ अरसे से इस किस्म के मामलात नहीं हो रहे थे, और पहले ये बात आप इस सारी सिचुएशन को देखें ना, तो पहले आप इस तरह का एक बनाएं कि जी यहाँ से मसला आया है, फिर आप उस तरीके से उनको रिटेलिएट जी सोल्जर्स करेंगे इंडिया के एक कश्मीरी आम लोगों के ऊपर जिनके पास कोई वेपन नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने इसको एज यूजुअल कंडेम किया है। इसी काम में पाकिस्तान अच्छा है कि जी हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। एक ये काम पाकिस्तान बहुत अच्छा करता है, जो पाकिस्तान की ये जो रूलिंग पावर्स हैं वो, और एक जो दूसरा काम पाकिस्तान अच्छा करता है वो है जी हम मुस्तरद करते हैं। ऐसे जैसे आपकी मजम्मत से और आपके मुस्तरद करने से कुछ हो जाएगा इस सारी चीज़ों का, ये उनकी टाइमलाइन का हिस्सा है
ये सारी चीज़ जब एक ले मैन को ये बातें समझ आ रही हैं, जब ये जर्नलिस्ट जो बैठे हुए हैं तज्जिया कर रहे हैं, जब उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, तो कैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस या हमारी गवर्निंग पावर्स जो रहती ही इस चीज़ में हैं, जिनका काम ही ये करना है, और उनके थिंक टैंक्स उनको ये चीज़ें बताते रहते हैं, आपकी हर तरह की, आपको साउथ एशियन रीजन के अंदर जो मामला चल रहे हैं कश्मीर को लेके ख़ास तौर पे, वो सारी चीज़ें आप उनसे हमसे कई गुना ज़्यादा अवेयर हैं इंटरनल मैटर्स के साथ। तो आप अगर इन चीज़ों को लेके उस तरीके से बिहेव नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए, तो फिर ये आपका डेलिबरेट मूव है ब्लाइंड आए करना कश्मीर के इशू के ऊपर। क्योंकि जब पहली दफ़ा ही इंडिया ने हमास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के लिए, तो कश्मीर हमारे बीच में एक कॉमन ग्राउंड है, तो समझ आना चाहिए था कि शायद इंडिया जो है वही हरकत जो है ना इस टाइम कश्मीरियों के साथ करने के बारे में सोच रहा है, और उसका उन्होंने एक डेमो दिखा दिया आपको, इन 3 जो लोगों को उन्होंने इस तरीके से मारा है उसके थ्रू। खैर, जो आखिरी बात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है 25 दिसंबर की तारीख के बारे में। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, एक बेहतरीन आइडियोलॉजी के वो इंसान थे, और उसको फॉलो करते हुए उन्होंने एक मुस्लिम स्टेट बनाई, और जो जो बंदा उस आइडियोलॉजी के ऊपर भी बिलीव करता था वो उनको फॉलो करता हुआ यहाँ आया उनके साथ। और पाकिस्तान ने जितना टाइम से वो बना है स्टेबिलिटी नहीं देखी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यहाँ पर शायद ही कभी आई हो, डेमोक्रेसी यहाँ पर शायद ही कभी जो है उसने सस्टेन किया हो अपनी पोजीशन को। लेकिन कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी के बारे में इस वक्त पाकिस्तान में तो यही बयानी है जी कि उनसे इख्तलाफ करना कुफर नहीं है, चाहे वो हमारे इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हों, या फिर वो हमारी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप हो, कि उनकी भी जो इस वक्त बयानात या उनकी जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि जो इस वक्त ओवरऑल दुनिया का होता है वो उसी के ऊपर बिलीव करते हैं, चाहे पाकिस्तान का अपना स्टांस उसको लेके जो मर्ज़ी हो। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी को कितना फॉलो किया गया है वो आपने खुद देखा है। गांधी जो थे ग्रेट लीडर, इंडिया के वो फाउंडर थे, इंडिया के वो लीडर थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से गोली मार दी गई थी। लेकिन जो कायद-ए-आज़म है उनकी आइडियोलॉजी यहाँ पर हर दिन असैसिनेट होती है, हर रोज़ एक ऐसी चीज़ यहाँ पर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया हुआ है, हमारी नॉर्मल डे पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसका हिस्सा बन गया है कि उसको आपने मुतरादिफ जाके ही चलना है। कायद की जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ थी उसके, अगर वो शायद कह जाते कि जी आपने करप्शन करनी है तो आप ना करते, अगर वो कहते जिस मुल्क को नहीं संभालना तो शायद आप संभाल लेते, अगर वो आपको शायद कह जाते कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो आपके बॉस हैं, वो आपके सर्वेंट्स नहीं हैं, तो आप शायद उनको जो है ना अपना बॉस ना बनाते। तो ये हर तरह की, यहाँ तक ये चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती हैं। कायद-ए-आज़म जो आइडियोलॉजी जिस बेस के ऊपर ये मुल्क आया था, आप खुद उस चीज़ को अभी खुद विटनेस करें, अपनी डे टू डे रूटीन में करें बेशक, या अपने पॉलिटिकल सिनेरियो जिस भी आप पॉलिटिकल लीडर को उठा के देखें, या आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस की पॉलिसीज़ को उठा के देखें, तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि कहीं पे भी कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी अप्लाई नहीं की जा रही। सारी चीज़ों में काकड़ साहब की जो लाइन है ना वो अप्लाई होती है कि उनकी बात से इख्तलाफ करना, कायद-ए-आज़म की बात से इख्तलाफ करना कुफर नहीं है। सही कहा था उन्होंने। खैर, अभी तक के लिए प्रोग्राम में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।